In this video, we will discuss Solow model of growth. Robert Solow is an American economist whose work on the theory of economic growth culminated in the exogenous growth model named after him. He is currently Emeritus Institute Professor of Economics at the MIT, USA, where he has been a professor since 1949. He was awarded the Nobel Memorial Prize in Economic Sciences in 1987. Four of his PhD students, George Akerlof, Joseph Stiglitz, Peter Diamond, and William Nordhaus, later received Nobel Memorial Prize in Economic Sciences in their own right. Indian economists Avinash Dikshit and Arjun Kumar Sen Gupta were the PhD students of Robert Solow. Solow developed his model of economic growth with a 30 pages paper on a contribution to the theory of economic growth, published in the Quarterly Journal of Economics in February 1956. First is the introduction of Solow model of growth. Robert M. Solow developed a model of long-run economic growth in 1956. 1956 में इन्होंने अपना मॉडल दिया है. His model is an alternative of Harrod-Domar model. Harrod-Domar model का ये एक alternative है. Roy Harrod was an English economist. He is best known for writing The Life of John Maynard Keynes in 1951 and for the development of the Harrod-Domar model. F.C. Domar was a Russian-American economist famous as developer of the Harrod-Domar model. Harrod-Domar model क्या है, इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख सकते हो. हैरड-डॉमर मॉडल में ये है कि जो स्टेडी स्टेट ग्रोथ है उसको मेंटेन करना डिफ़िकल्ट है. नाइफ एच इक्विलिब्रियम जिसको वो कहते हैं. सोलो हैज़ इनकॉर्पोरेटेड इन हिज मॉडल द पॉसिबिलिटीज ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशंस एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर. सोलो ने अपने मॉडल में फैक्टर सब्स्टिट्यूशंस मतलब लेबर कैपिटल का सब्स्टिट्यूशन वो चीज़ें ली हैं, टेक्निकल प्रोग्रेस चीज़ें ली हैं जिसके साथ हम स्टेडी स्टेट को ग्रोथ को मेंटेन कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू सोलो, हैरड-डॉमर मॉडल इज बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक अजम्पशंस लाइक फिक्स्ड फैक्टर प्रोपोर्शंस. मतलब फिक्स्ड फैक्टर प्रोपोर्शन का मतलब हो गया कि हम लेबर कैपिटल को सब्स्टिट्यूट नहीं करते, प्रोपोर्शन जो है वो सेम है. एंड कांस्टेंट कैपिटल आउटपुट रेशो. कैपिटल आउटपुट रेशो जिसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं ये भी सेम है अकॉर्डिंग टू हैरड-डॉमर. Solow model implies that economies will conditionally converge to the same level of income given that they have the same rates of saving, depreciation, labor force growth and productivity growth. सोलो का ये मानना है कि जो इकोनॉमीज हैं उनकी ग्रोथ रेट सिमिलर ही होगी अगर उनके पास सेविंग्स, डेप्रिसिएशन, लेबर फोर्स ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी ग्रोथ सिमिलर है. Thus, the Solow model is the basic framework for the study of convergence across countries. Now, assumptions of the Solow model. First assumption, only a single composite commodity national output is produced. Suppose production refers to net production, that is gross production minus depreciation. There are two factors, suppose labor and capital. Labor and capital can be substituted, एक दूसरे की जगह हम इनको लगा सकते हैं. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है, सेपरेटली अप्लाई टू लेबर एंड कैपिटल. मतलब लेबर को बढ़ाएंगे तो आउटपुट डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ेगा, कैपिटल को बढ़ाएंगे तो आउटपुट डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ेगा.
कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, इसमें देखो क्या डिफरेंस है। अब अगर हम सिर्फ लेबर को बढ़ाएं कैपिटल को फिक्स रखें, या कैपिटल को बढ़ाएं लेबर को फिक्स रखें, तो शॉर्ट रन बन गया ये, जिसमें जैसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है। तो शॉर्ट रन में तो अप्लाई होगा डिमिनिशिंग रिटर्न। ये लॉन्ग रन हो गया, स्केल मींस सारे फैक्टर हम इंक्रीज करेंगे, तो वहाँ पे होगा कांस्टेंट रिटर्न। बिकॉज ऑफ सिक्स्थ assumption, production function is a linear production function of first degree. Linear production function of first degree means a function which is homogeneous of degree 1 is said to be linearly homogeneous or to display linear homogeneity. A production function which is homogeneous of degree 1 displays constant returns to scale, since a doubling all inputs will lead to a doubling of output. So constant return to scale, ये डिग्री 1 का मीनिंग यही है होमोजेनियस फंक्शन का। प्रोपेंसिटी टू सेव सपोज कांस्टेंट है, जिसको हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कहते हैं, वो सपोज कांस्टेंट है। ऑल सेविंग इज ट्रांसफर्ड इनटू इन्वेस्टमेंट, दैट इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, एस इक्वल्स टू आई है। नो होर्डिंग है, कोई जमा नहीं करते लोग। देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी सपोज, देयर इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन द इकोनॉमी सपोज। प्राइसेस, वेजेस एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आर फ्लेक्सिबल, ये कम ज़्यादा हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट सपोज इट इज़ न्यूट्रल। तो ये कुछ असम्पशंस हैं जिनके ऊपर सोलो मॉडल बेस्ड है। नो एक्सप्लेनेशन ऑफ सोलो मॉडल ऑफ ग्रोथ। अकॉर्डिंग टू सोलो, बिकॉज ऑफ द assumptions of full employment, substitutability of labor and capital, flexibility of prices, free market economy in the long run remains in a steady, stable growth. Stable equilibrium में इकोनॉमी रहती है इन assumptions की वजह से। जैसे हेराडोमर ने कहा था कि मेंटेन करना मुश्किल है स्टेडी स्टेट को, पर सोलो ने दिया है कि वो मेंटेन हो सकता है बिकॉज ऑफ दीज assumptions. In this state, saving is automatically invested, that is I equals to S. According to Solow, the basic identity between saving and investment is this is the basic identity. ये हमने एक और वीडियो बनाई है न्यू क्लासिकल मॉडल ऑफ ग्रोथ, उसमें भी सोलो की इक्वेशन है, सिमिलर इक्वेशन है ये। दिस इज इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंक्रीज इन द कैपिटल स्टॉक। कैपिटल स्टॉक में कितना इंक्रीज हुआ, सपोज कैपिटल स्टॉक 2010 में है 100, 11 में हो गई 150, तो यहाँ पे आएगा 50। जितनी कैपिटल स्टॉक इंक्रीज हुई दैट इज़ द नेट इन्वेस्टमेंट। तो ये सेविंग है। इनकम का कितने परसेंट हमने सेव किया, एस इज द प्रोपोर्शन। जैसे सपोज 20% हमने सेव किया तो एस इज 20%। अगर इनकम हमारी 100 है तो 20% इंटू 100 मीन्स 20, तो ये हमारी सेविंग बन गई। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गई के डैश इक्वल्स टू एस इंटू वाई। अलग से इन्वेस्टमेंट फंक्शन नहीं दिया है सोलो ने, सेविंग के फॉर्म में ही दिया है। प्रोडक्शन इज द फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर, सपोज दो फैक्टर हैं कैपिटल एंड लेबर। तो एक वाई जो है, ये वाली वाई, ये फंक्शन अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो ये क्या बन जाएगा, देखो ऐसी इक्वेशन ये बन जाएगी के डैश इक्वल्स टू एस। तो ये हमने वाई की जगह पर लिख दिया, फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। जो लेबर है, लेबर की ग्रोथ रेट वो सपोज ये है L0, LT नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन पीरियड T, किसी भी पीरियड में कितने नंबर ऑफ वर्कर्स को हमने एम्प्लॉयमेंट दी। L0 नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन इनिशियल पीरियड, LT से पहले जिस पीरियड के बेस पे हम ग्रोथ देख रहे हैं कि LT पीरियड में, T पीरियड में कितनी ग्रोथ हुई। जैसे हम ये देखना हो कि 2005 में कितनी ग्रोथ हुई कंपेयर टू 2004 सपोज, तो 4 को हम कहेंगे 0 पीरियड, इसको हम कहेंगे T पीरियड। तो 0 पीरियड में लेबर की एम्प्लॉयमेंट पहले कितनी थी, T पीरियड में वर्कफोर्स जो है कितने एम्प्लॉय हुए। ग्रोथ लेबर की कितनी है, ग्रोथ ऑफ लेबर एट कांस्टेंट एक्सोजेनस रेट, मतलब
ग्रोथ रेट लेबर की जो हो रही है वो कितनी हो रही है। तो सभी को अगर हमने एम्प्लॉयमेंट देनी हो तो कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लेबर की जो न्यू ग्रोथ रेट हुई, वो जो लेबर को ऑलरेडी हम दे रहे थे एम्प्लॉयमेंट, वो जैसे सपोज हम 100 लोगों को पहले एम्प्लॉयमेंट दे रहे थे, 10 लोग सपोज और आ गए, तो आज हमारी एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए 110, 110। तो 110 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। 100 लोगों को तो हम पहले ही एम्प्लॉयमेंट दे रहे थे, 10 लोगों को और एम्प्लॉयमेंट देनी है जो ऐड हुए हैं लेबर फोर्स में। तो उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ताकि इकॉनमी स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम में बनी रहे। उसके लिए हमने क्या किया, ये एल की जगह इस फंक्शन को पुट कर दिया। तो यही हमारी इक्वेशन है के डैश एस एफ के, एल की जगह हमने लिख दिया दिस वन। तो ये के सोलो की फाइनल इक्वेशन है कि इतना इन्वेस्टमेंट हमें करना पड़ेगा। Solow regards equation 5 as the basic equation as it helps in determining the volume of capital stock, कितना capital stock चाहिए, needed to provide employment to available labor, जितनी labor available है सारी labor को काम देने के लिए कितना capital stock हमें चाहिए। डायग्रामेटिकली इसको एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पर। दिस इज द डायग्रामेटिक explanation portion. For better understanding, let me draw this diagram again step by step. आप भी इस डायग्राम को स्टेप बाय स्टेप बनाइए वीडियो के साथ साथ, ताकि जो डेरिवेशन है डायग्राम की वो समझ आ जाए। One side we are taking capital labor ratio, other side we are taking output, saving, लेबर फोर्स ग्रोथ, डेप्रिसिएशन, ये सारी चीज़ें दूसरी साइड हैं, वर्टिकल साइड। Now suppose this is our output function, ये सपोज हमारी आउटपुट फंक्शन की कर्व है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न सेपरेटली जैसे अप्लाई होता है उस हिसाब से हमने ये बनाई है। दिस इज वाई एफ के अपॉन एल वन, आउटपुट फंक्शन की हमारी ये कर्व है। ये आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ कैपिटल लेबर, डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग हमने ये कैपिटल की बनाई है। This is suppose growth rate of capital curve. This is S F K upon L. Suppose 1, जो कैपिटल ग्रोथ रेट है उसको रिप्रेजेंट करती है ये कि कैपिटल हमारी इकोनॉमी में कितनी है। एंड ये हमारी एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन। इसको हम लिख रहे हैं, this is shows the growth rate of labor, that is N, and plus the depreciation of capital। दो चीजें हैं इसमें, लेबर फोर्स की ग्रोथ रेट एंड डेप्रिसिएशन।
तो यहाँ पर अगर हम अपना इक्विलिब्रियम देखें, दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, ई पॉइंट suppose, and this is the K upon L 1 जिसको हम बोल रहे हैं। तो K upon L1 अगर हम यहाँ तक एम्प्लाई करें कैपिटल लेबर रेशो को, तो उस हिसाब से जो कैपिटल की ग्रोथ रेट है 1, उस हिसाब से जो आउटपुट है 1, कि अगर हमने ये 1 लगाया तो कितनी हमें आउटपुट मिलेगा। आउटपुट हमें मिल रहा है सपोज यहाँ तक, और जो कैपिटल की ग्रोथ रेट है वो लेबर की जो ग्रोथ रेट है, जो डेप्रिसिएशन है, उस हिसाब से इक्वल है। यहाँ पर अगर हम हाइट देखें, जैसे ये सपोज 3.5 ऑलमोस्ट है, तो 3.5 ही हमारी लेबर फोर्स की ग्रोथ है, डेप्रिसिएशन है, 3.5 ही हमारी कैपिटल की ग्रोथ रेट है। तो सारी लेबर फोर्स को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए हमें इतनी इन्वेस्टमेंट, इतना कैपिटल स्टॉक बढ़ाना होगा। अगर सपोज हम इससे कम ग्रोथ रेट रखते हैं कैपिटल स्टॉक की, किसी भी पॉइंट पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अपॉन L1 से पहले सपोज हम ये रखते हैं K अपॉन L 0 है सपोज। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर जो हमारी लेबर फोर्स की ग्रोथ है, डेप्रिसिएशन है, वो है यहाँ तक, और जो हमारा कैपिटल स्टॉक की ग्रोथ है वो है ज़्यादा। इट मीन्स हमें बेनिफिट है कि हम ज़्यादा आउटपुट करें, कैपिटल स्टॉक को बढ़ाएं, क्योंकि हमें जो कैपिटल स्टॉक है वो ज़्यादा है हमारे पास, जो ग्रोथ रेट लेबर की है वो कम है, तो कैपिटल ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकती है, इसलिए हम आउटपुट बढ़ा सकते हैं, कैपिटल स्टॉक बढ़ा सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लेबर की ग्रोथ रेट ज़्यादा है, लेबर की ग्रोथ रेट से कैपिटल की स्टॉक की ग्रोथ रेट ज़्यादा है डेप्रिसिएशन से। अगर इस साइड देखें किसी भी पॉइंट पर, सपोज K अपॉन L2, तो यहाँ पर सपोज इट इज C, इट इज D। तो यहाँ पर अगर हम देखें, जो डेप्रिसिएशन है, लेबर की ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा है, और कैपिटल स्टॉक की ग्रोथ रेट कम है, तो हमें ये आउटपुट कम मिलेगा। ग्रोथ रेट जो कैपिटल है वो कम है, वो C तक है, यहाँ से लेके C तक है, और जो लेबर की ग्रोथ रेट है वो यहाँ से लेके D तक है। तो इतनी ग्रोथ रेट लेबर की जे डेप्रिसिएशन की ज़्यादा है, तो उससे क्या होगा, आउटपुट कम हो जाएगा और इकॉनमी यहाँ पर आ जाएगी। इधर क्या है, कैपिटल ज़्यादा है इसलिए आउटपुट बढ़ जाएगा, इधर क्योंकि लेबर फोर्स ज़्यादा है, डेप्रिसिएशन ज़्यादा है, आउटपुट कम हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो इक्विलिब्रियम है, दिस इज़ द स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल का मतलब भी यही होता है जो ऑपोजिट फोर्सेस के थ्रू अपने आप ही वापस अपनी पोजीशन पर आ जाए। अगर ये लेफ्ट पर होगा तो अपने आप ही यहाँ पर आ जाएगा, अगर ये राइट होगा तो अपने आप ही यहाँ पर आ जाएगा, तभी इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। बट सोलो ने यहाँ एक्सप्लेन किया है इस डायग्राम के थ्रू कि ये इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा या नहीं होगा, इट डिपेंड्स अपॉन कि जो हमारी कैपिटल ग्रोथ रेट की कर्व है वो कैसी है। अगर कैपिटल ग्रोथ रेट की कर्व इस टाइप से जो दी हुई है, ये सिर्फ दिखाया है कि कहाँ पर स्टेबल होगी, कहाँ पर अनस्टेबल होगी। इसको हम ड्रॉ करते हैं दोबारा। देखो इसी डायग्राम के बेस पे ये बनाया हुआ है, इसी डायग्राम के बेस पे मैं
दोबारा ड्रॉ करके बताता हूँ आपको कि स्टेबल अनस्टेबल क्या मतलब है। यही दो पॉइंट्स हैं, कैपिटल लेबर रेशो और वर्टिकली वही चीज़ें हैं YS, एंड दिस इज आवर N plus sigma curve, suppose, N plus sigma. N means growth rate of labor force, sigma means depreciation. तो हमने यहाँ पर क्या देखा, जो हमारा कंक्लूजन करने वाला पॉइंट है कि अगर ब्लू लाइन ऊपर है, कैपिटल ग्रोथ रेट ज़्यादा है लेबर से, फिर हम जाएंगे राइट। मतलब जो कैपिटल ग्रोथ रेट, और इसको हम लगाएं लेबर ग्रोथ रेट, तो अगर ये ऊपर है, कैपिटल ग्रोथ रेट ऊपर है, फिर हम जाएंगे राइट। और अगर कैपिटल नीचे है, लेबर ग्रोथ ऊपर है, जैसे कैपिटल नीचे है, लेबर ग्रोथ ऊपर है, फिर हम जाएंगे लेफ्ट। तो ये ध्यान रखना है हमने। अब देखो, जो हमारी कर्व है एस वाली, अगर सपोज ये ऐसी हो, सपोज ऐसी हो, यहाँ पर थोड़ा गैप होना चाहिए था इसकी तरह, तो ये गैप नहीं बना। मैं दोबारा ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। This is our labor force growth and depreciation, और ये है हमारी कैपिटल ग्रोथ रेट की कर्व। ऐसे जो ब्लू वन है, दिस वन, दिस इज द SFK/L1, जैसे हमने पहले डायग्राम में बनाया। तो हमने क्या देखना है इसमें कि अगर हम ब्लू पोर्शन पर हैं, ब्लू पोर्शन अगर ऊपर है, अगर ब्लू पोर्शन ऊपर है, फिर हम जाएंगे राइट। जैसे हम यहाँ पर देखें, अगर ब्लू पोर्शन ऊपर है, इस साइड है हम, तो यहाँ से जाएंगे राइट। अगर ब्राउन पोर्शन, ये वाला पोर्शन ऊपर है लेबर वाला, फिर हम जाएंगे लेफ्ट। इट मीन्स दिस इज स्टेबल। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर देखें, ब्लू पोर्शन ऊपर है, तो अगर हम इधर हों तो यहाँ से हम जाएंगे राइट। अगर हम यहाँ पर हों, रेड ऊपर है, तो यहाँ से हम जाएंगे लेफ्ट। अगेन इट इज स्टेबल। और अगर हम यहाँ पर देखें, एट दिस पॉइंट, सपोज वी आर हेयर, दिस इज सपोज, यहाँ पर देखो, अगर हम लेफ्ट साइड पे हो जाएं, यहाँ से अगर हम थोड़ा लेफ्ट हो जाएं यहाँ पर, तो रेड पोर्शन ऊपर होगा, ब्राउन पोर्शन, ब्लू नीचे है, तो हम और दूर चले जाएंगे। और अगर राइट होंगे, क्योंकि ब्लू पोर्शन ऊपर है, तो हम और इस साइड चले जाएंगे, तो दोबारा यहाँ पर नहीं आएंगे, इसलिए ये पोर्शन होगा अनस्टेबल। तो जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, इट डिपेंड्स अपॉन दीज टू लाइंस, कि कौन सी कर्व कैसी है। अगर कैपिटल की ग्रोथ रेट ज़्यादा है तो आउटपुट बढ़ेगा, अगर डेप्रिसिएशन ज़्यादा है जैसे यहाँ पर है तो लेफ्ट आएगा, कम होगा।
तो जो स्टेबल इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल होगा या नहीं होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द स्लोप ऑफ दिस ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल कर्व। यहाँ पर सोलो ने दिए हैं डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ की डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं, इसको भी जो फंक्शंस हैं हमारे, ये तो सिमिलर फंक्शन ही है, n प्लस क्यू, n प्लस सिग्मा, लेबर फोर्स प्लस डेप्रिसिएशन। ये ब्लू लाइन है, ये भी ब्लू लाइन है जो हमारे थे कैपिटल के ग्रोथ रेट। तो सिंपल डायग्राम है, इसको दोबारा ड्रॉ करने की ज़रूरत तो नहीं है, आप आराम से इसको ड्रॉ कर सकते हो इजीली। What we want to say in this diagram, first is the possibility of equilibrium growth. Line n plus sigma, ये वाली जो लाइन है, shows possibility of equilibrium growth. In this case warranted and natural growth rates are equal. तो अगर हमारा फंक्शन यहीं पर हो एस एफ वाला, तो ये नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ दोनों सेम होंगे, तो ये इक्विलिब्रियम ग्रोथ पाथ ये है। तभी हम जब भी कोई सेविंग लाइन हमारी यहाँ से काटती है एस वाली लाइन, तो उसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो अगर सारी लाइन जिसके ऊपर ही हो, ये वाली कर्व इसके ऊपर ही हो, इट मीन्स इक्विलिब्रियम है। तो अगर ये 1 वाली हो, क्योंकि अगर ये ऊपर है ब्लू पोर्शन, ये ब्लू लाइन है, तो जैसे हमने कहा कि राइट साइड जाएंगे हम, इट मीन्स हाई प्रोडक्टिव सिस्टम होगा, विच रिप्रेजेंट्स हाईली प्रोडक्टिव सिस्टम। कैपिटल एंड इनकम इंक्रीज मोर रैपिडली दैन द लेबर, क्योंकि ये ऊपर है। तो परपेचुअल फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इसको कहते हैं। परपेचुअल का मतलब होता है नेवर एंडिंग, जब कभी ख़त्म नहीं होता, जो कभी चेंज नहीं होता, नेवर एंडिंग और नेवर चेंजिंग सिचुएशन। और अगर हम कम हो, ये नीचे हो, नीचे का मतलब हम लेफ्ट जाएंगे, इट मीन्स इसका उल्टा हो गया, हाईली अनप्रोडक्टिव सिस्टम। क्योंकि ये कैपिटल ग्रोथ की ग्रोथ रेट की जो लाइन है वो डेप्रिसिएशन से कम है, तो नीचे लेफ्ट को जाते रहेंगे हम, विच रिप्रेजेंट्स अनप्रोडक्टिव सिस्टम। तो कैपिटल एंड इनकम इंक्रीज बाय लेसर अमाउंट दैन लेबर एंड डेप्रिसिएशन, तो पर कैपिटा इनकम कम हो जाएगी। तो ऐसे थोड़ा ट्रेड साइकिल टाइप भी सिचुएशन हमें पता चलती है विद द हेल्प ऑफ सोलो मॉडल। Merits of the Solow model. This model maintained the main features of Harrod-Domar model. Harrod-Domar model की कुछ मेन फीचर्स हैं, जैसे homogeneous capital, proportional saving function, given growth rate of labor force, वो इन्होंने ली हैं। This model allows substitutability, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनका, कि इन्होंने कैपिटल लेबर में सब्सटीट्यूशन बनाया है। As a result, growth process becomes more adjustable and realistic. This model used continuous production function. Continuous production function दिया है इन्होंने। Solow created steady state of economic growth path. तो इकोनॉमी कैसे स्टेडी स्टेट पे चलेगी, जैसे हमने इस डायग्राम में देखा n प्लस सिग्मा वाली लाइन। Solow has sidetracked all difficulties and rigidities of modern Keynesian income analysis. तो उसकी जो कमियां हैं केन्स की, वो सारी सोलो ने ख़त्म की हैं। Now criticism of the Solow model. It ignores equilibrium between G and GW. तो जैसे हमने ऊपर देखा, वारंटेड ग्रोथ एंड नेचुरल ग्रोथ में तो इक्विलिब्रियम इन्होंने दे दिया, बट एक्चुअल एंड वारंटेड में नहीं दिया। होमोजेनियस कैपिटल है, ये भी नहीं होता। फ्लेक्सिबिलिटी है प्राइसेस, ये भी नहीं होता, क्योंकि जैसे लिक्विडिटी ट्रैप है, लिक्विडिटी ट्रैप केन्जियन थ्योरी में आता है, एक ऐसे करके डायग्राम है वो, कि मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आके जो डिमांड फॉर मनी है वो परफेक्ट इलास्टिक हो जाती है। दिस इज़ द मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिससे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं जाता। तो अगर नहीं जाता, इट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ नॉट फ्लेक्सिबल। अनरियलिस्टिक अजम्पशन है, जैसे परफेक्ट कंपटीशन, नेचुरल न्यूट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी, ये चीज़ें नहीं हैं, जैसे हमने
हिक्स एंड चैम्बरलिन को देखें तो उन्होंने कहा है कि इम्परफेक्ट कंपटीशन जो है वो ज़्यादा रियल सिचुएशंस हैं। इन्वेस्टमेंट फंक्शन इन्होंने नहीं दिया, जैसे पहले हमने देखा स्टार्टिंग में इस चैप्टर में कि सोलो ने सेविंग फंक्शन के साथ ही इन्वेस्टमेंट को एक्सप्लेन किया है। ये एक ड्रॉबैक है जो अमर्त्य सेन के अकॉर्डिंग, Amartya Sen is a professor of economics at Harvard University, USA. He was awarded the Nobel Memorial Prize in Economic Sciences in 1998 and India's Bharat Ratna in 1999. He did BA in Economics from Presidency College, Kolkata, India. बाकी इनकी जो स्टडी है वो सारी बाहर की ही है। अमर्त्य सेन के अकॉर्डिंग, बिकॉज ऑफ दिस शॉर्टकमिंग, इन्वेस्टमेंट फंक्शन ना देना, द मॉडल हैज़ फेल्ड टू हाईलाइट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स अबाउट फ्यूचर। तो फ्यूचर की जो एंटरप्रेन्योर्स की एक्सपेक्टेशंस हैं उन चीज़ों को इग्नोर हो गई वो चीज़ें, बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट फंक्शन। तो अगर कहते हैं हम इन्वेस्टमेंट फंक्शन को लगा दें तो सोलो मॉडल में एंड हेरेड-डोमर मॉडल में कोई खास डिफरेंस नहीं है। तो वही इंस्टेबिलिटी नाइफ एज इक्विलिब्रियम वाली सोलो में भी मॉडल में भी बन जाएगी। दिस इज नॉट सो एम्पिरिकल नहीं है ये, बेस्ड टेक्निकल प्रोग्रेस इज नॉट न्यूट्रल, नॉट एक्सोजेनस फैक्टर। एक्सोजेनस होता है जिसका कोई बाहर का रीज़न हो, जो किसी बाहर के वेरिएबल से इफेक्ट होकर बना हो, हैविंग एन एक्सटर्नल कॉज और रीजन, तो वो चीज़ नहीं होती। टेक्निकल प्रोग्रेस जो है वो विद इन द फंक्शन होता है, एंडोजनस होता है। इट डिपेंड्स अपॉन इन्वेस्टमेंट, रिसर्च, कैपिटल एक्यूमुलेशन, नॉलेज। तो ये चीज़ें जो हैं वो एक्सोजनस नहीं है। दो मॉडल हैं, हेरेड-डोमर जिसकी अलग वीडियो है, सोलो की हमने ये वीडियो है। तो दोनों का कंपेयर कर रहे हैं अब, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हेरेड-डोमर एंड सोलो मॉडल, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज़ हैं। हेरेड-डोमर मॉडल इज़ बेस्ड ऑन फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ प्रोडक्शन, सोलो इज़ ऑन वेरिएबल प्रोपोर्शन। हेरेड-डोमर मॉडल नैरो है क्योंकि इसमें लेबर टेक्नोलॉजी को नहीं लिया गया। ये ब्रॉडर है क्योंकि इसमें लेबर टेक्नोलॉजी को लिया गया है। हेरेड जो है इट अज्यूम्स लेबर फोर्स, टेक्निकल प्रोग्रेस इन्होंने कांस्टेंट माने हैं, इन्होंने नहीं माने। इसी वजह से कांस्टेंट मानने की वजह से ही हेरेड-डोमर में स्टेडी स्टेट ग्रोथ को मेंटेन करना मुश्किल है, इनमें पॉसिबल है। तभी ये रिजिड है मॉडल, ये फ्लेक्सिबल है। लेबर कैपिटल सब्सटीट्यूट नहीं है, इनमें सब्सटीट्यूट हैं। इस रिजम्पशन की वजह से ही स्टेडी स्टेट ग्रोथ को मेंटेन किया जाता है। दिस इज लेस रियलिस्टिक, दिस इज मोर रियलिस्टिक। नाइफ एज इक्विलिब्रियम दिया है इन्होंने जो अनस्टेबल है, और इन्होंने स्टेबल दिया है इक्विलिब्रियम with the help of technical progress and with the help of substitutability between labor and capital. This was all about the Solow model of growth. Thank you. Thanks for watching this video.